اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، آج میں اپنے اسٹوڈیو میں، آفس میں حاضر ہو چکا ہوں۔ گزشتہ 2 دنوں سے میں مغربی بنگال کے سفر پر تھا۔ مدرسہ قاسمیہ، اشرف العلوم، کوتول پوسٹ، بشن پور تھانہ، ہریش چندر پور ضلع مالدہ، مغربی بنگال میں بہت ہی شاندار اجلاس عام ہوا۔ حافظ عبدالصمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے بڑا زبردست اس پروگرام کو سجایا تھا۔ مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا تھا، تو گزشتہ کل میں ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچا اور سیدھا آج جلگاؤں اپنے آفس پہنچ گیا ہوں۔ یہ پروگرام جلسہ دستار بندی، جس میں 2 بچے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حافظ قرآن بنے، ان کی دستار بندی ہوئی اور زبردست انداز میں تعلیمی پیغام کو عام کیا گیا۔ یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ دہلی سے مولانا عبد الملک صاحب فاروقی، اور یہاں مہاراشٹر سے مقرر خصوصی کے طور پر میں، اور ایک بنگالی زبان کے مقرر حضرت مولانا یاسین علی صاحب تشریف لائے تھے۔ یہ اجلاس کوتول میں بڑا ہی کامیاب رہا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ مغربی بنگال کے اس مدرسے میں، کوتول جو گاؤں میں ہیں، اس مدرسے پہ آپ خصوصی توجہ دیں۔ اس علاقے میں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر تعاون کریں، مدد کریں، کیونکہ یہ بنجر علاقے ہے اور ان علاقوں میں 70، 80، 50 بچوں کو لے کر مدرسہ چلانا اور ان پر محنت کرنا، یہ بھی بہت بڑا دینی کام ہے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، افسوسناک خبر تو میں ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ ایک حقیقت سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے ہندو آتنکوادی مسلمانوں کے ناموں کا غلط استعمال کر کے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ گزشتہ کل آپ نے اس خبر کو سنا کہ رام مندر اور یوگی آدتیہ ناتھ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی، اور یہ دھمکی کس کے لوگوں نے دیا؟ تو ماسٹر مائنڈ گو سیوا پریشد کا ادھیکش دیویندر تیواری نے اپنے لوگوں سے دلوایا تھا۔ اب یہ دیویندر تیواری جو خود کبھی یوگی آدتیہ ناتھ کو گلدستہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، ایک پروگرام میں یوگی آدتیہ ناتھ کا بڑا قریبی ہے، لیکن یہ آتنکوادیوں نے دھمکی دینے کے لیے زبیر اور عالم
दोनों नामों का इस्तेमाल किया था। आखिर ये दोनों के दोनों हिंदू भगवा आतंकवादी थे। ताहर सिंह और ओम प्रकाश, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घिनौने काम के लिए इन्हें इस्तेमाल किया गया था और फिर मुस्लिम आईडी से मेल करके उसका स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया गया और अपने लिए सिक्योरिटी भी मांग ली गई थी। लेकिन उसके पकड़े गए मुलाजिमीन के एतराफ ने सारा भांडा फोड़ दिया। मुलजिमीन के कबूलनामे के मुताबिक तिवारी ने ही यह साजिश रची थी। फिलहाल ये गौरक्षक आतंकवादी फरार बताया जा रहा है। लेकिन मुल्क के हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से मुसलमानों का नाम ये हिंदू आतंकवादी इस्तेमाल करके पूरी कौम मुस्लिम को बदनाम कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली फसादात में 2 मुसलमान नौजवानों को मुजरिम करार दे दिया गया, जिसमें एक का नाम है नूर मोहम्मद नूरा और दूसरे का नाम है नबी मोहम्मद। इन दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब अदालत 8 जनवरी को इनकी सजा पर गौर का हुक्म देगी। मशरिकी दिल्ली तशद्दुद जो 2020 में हुआ था, इसमें दुकान में तोड़ फोड़ और आगजनी के मामले में 2 मुलजिमान को मुजरिम करार दिया गया है। खैर, अब अदालत इन्हें 8 जनवरी को इनकी सजा पर गौर का हुक्म सुनाएगी। लेकिन अदालत आलिया से हमारा ये भी डिमांड है कि जो मुजरिम भगवा आतंकवादी हिंदू आतंकवादी खुलकर अपनी वीडियो बनाकर फसादात करवा रहे थे, उन मुजरिमों को आखिर कब मुजरिम करार दिया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सीबीआई ने जुमेरात को रिश्वत मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के 2 प्रोफेसरों पर मुकदमा दायर कर दिया है। सीबीआई ने सख्त एक्शन ली। नागपुर में भी कार्रवाई जारी है और 4 गिरफ्तारियां अमल में आई है। पहली कार्रवाई में सीबीआई ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खालिद मुईन और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमृतपाल के खिलाफ मुबैना रिश्वत सतानी का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही रिश्वत के मामले में सीबीआई ने पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के 2 अफसरान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 2.25 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें नागपुर के रहने वाले प्रियदर्शन यश पांडे और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में वाक़ सुपर सुशक्ति केमिकल के डायरेक्टर देवी सिंह शामिल है। इनके अलावा पीईएसओ के साथ काम करने वाले 2 डिप्टी चीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राजस्थान के काबीनी वजीर यानी मंत्री मदन दिलावर ने एतराफ किया है इस बात का कि मैंने बाबरी मस्जिद मुनहदिम करने में किरदार अदा किया था। यानी मंत्री ये खुद कह रहे कि मैं बदमाश हूं, मैंने खुद ये आतंकवादी हमला किया था बाबरी मस्जिद पर। और अब वो ये भी कह रहा है कि कृष्णा जन्मभूमि हिंदुओं के हवाले कर दी जाए। यानी आप ये भी कमाल की बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ऐसे आतंकवादी को सजा नहीं सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना और कहा अपने फैसले में कि बाबरी मस्जिद किसी राम मंदिर की जगह पर नहीं बनाई गई थी। और यह भी माना और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बाबरी मस्जिद को गिराना जुर्म था। लेकिन कमाल की बात यह है कि मुजरिम खुद अपनी जबान से कह रहे कि हाँ मैंने ये काम किया था, लेकिन किसी एक भी आतंकवादी को आज तक सजा नहीं सुनाई गई है। और अभी ये आतंकवादी खुलेआम ये भी कह रहे हैं कि कृष्णा जन्मभूमि हिंदुओं के हवाले कर दी जाए। बड़ी खबर आ रही है कि 11 स्टेट्स 11 रियासतों के मदरसों को एनसीपीआर का नोटिस मिला है। जी हां, मदारिस में गैर मुस्लिम बच्चों का दाखिला क्यों नहीं? कार्रवाई न करने के खिलाफ हुकूक अतफाल की तंजीम एनसीपीआर ने 11 रियासतों को समन जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है। बच्चों के हुकूक की आला तंजीम एनसीपीसीआर ने 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को मदरसों में दाखिला लेने वाले हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम बच्चों की शनाख्त और उन्हें स्कूलों में दाखिल करने के लिए कार्रवाई न करने पर तलब किया गया है। बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आ गई है। अब कांग्रेस जो है वहां पर जितने भी भगवा आतंकी है उनको धीरे धीरे घेर रही है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा है कि कह रही है और विश्व हिंदू परिषद का यह इल्जाम है कि कर्नाटक हुकूमत
कई दहाइयों पुराने झूठे मुकदमात में राम भक्तों को फंसा रही है। यानी राम का नाम लेकर राम की आड़ में ये भगवा आतंकवादी छुपना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत श्री राम जन्मभूमि तहरीक के दौरान दर्ज किए गए झूठे मुकदमात को बहाल करने की साजिश कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के मरकजी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने नामानिगारों को बताया कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत 30-35 साल पुराने केसों की तहकीकात कर रही है, जिनमें से कई मुलजिमीन की मौत हो चुकी है और उनमें से ज्यादातर की उम्रें 70 से 80 साल के दरमियान हैं। चूंकि वो झूठे मुकदमात थे, बाद में कुछ हुकूमतों ने उन्होंने वापस भी ले लिया था, मगर अब कांग्रेस उनको निकाल रही है और राम भक्तों को फंसा रही है। जाहिर बात है ये राम भक्त नहीं है, ये जो भी होंगे जिन्होंने आतंकवादी काम किए होंगे ये सब आतंकवादी है, ये राम भक्त नहीं है। क्योंकि राम और राम भक्त आतंकवाद का नंगा नाच नहीं करते हैं। राम और राम भक्त किसी को राम का नारा लगाने पर मजबूर नहीं करते हैं, किसी बेकसूर को नहीं मारते हैं। राम और राम भक्तों में फर्क होता है, वो इंसानियत वाले होते हैं। और जो लोग राम का नाम लेकर दंगे फसाद कर रहे हैं, मस्जिदों में घुस रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और लोगों को पकड़कर राम जय राम श्री राम का नारा लगाने लगा रहे, ये राम भक्त नहीं है, ये ओरिजिनल आतंकवादी है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य ओपनिंग होने जा रहा है, इफ्तिताह होने जा रहा है, जबकि हिंदू संत ये कह रहे हैं कि मोदी पाखंडी है और मोदी पाखंड कर रहा है। सिर्फ 2024 के इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए अधूरे मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर का ओपनिंग करने जा रहा है, ताकि 2024 में अंध भक्तों का टोला और हिंदुत्ववादी टोला ये सहरा मोदी की सर बांधते हुए इलेक्शन में मोदी को पूरा फायदा हासिल हो। अब मोदी जी का बयान आया है कि अयोध्या में भगवान राम के स्वागत से पूरा मुल्क खुश है। अरे भाई, तो अभी तक के भगवान राम कहां थे? और भगवान राम को अब बिठा रहे हैं तो मस्जिद में बिठा रहे हैं, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद है। मुसलमानों का अकीदा है कि एक मर्तबा जो मस्जिद बन गई वो क़यामत तक मस्जिद रहती है, भले ही किसी वक्त में उसको कुछ भी बना दिया जाए, लेकिन एक मर्तबा जो जगह पर मस्जिद बन गई वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। तो भगवान राम मस्जिद में बैठ रहे हैं और मस्जिद में बैठ के कहां से वो खुश रहेंगे? तो वो खुश नहीं है तो पूरा मुल्क कहां से खुश रहेगा? लेकिन खैर, मोदी जी खुश है, भाजपा खुश है और आरएसएस खुश है, क्योंकि ये राम के नाम पर रोटियां खाने का इनको मौका मिल रहा है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से अफसोसनाक ही खबरें आती है जब से योगी आदित्यनाथ बैठा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि कुछ भगवा आतंकवादियों ने एक ट्रेन में एक मदरसे के स्टूडेंट तालिब इल्म के साथ बदतमीजी की। जमीयत उलमा हिंद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की टीमें पहुंची रेलवे स्टेशन और मुलजिमीन की गिरफ्तारी की मांग की। गुज़िश्ता शब जिला मुजफ्फरनगर के जनरल सेक्रेटरी क़ारी ज़ाकिर हुसैन को इत्तला मिली कि दिल्ली हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन में सवार दारुल उलूम वक्फ देवबंद के एक तालिब इल्म मोहम्मद साद के साथ कुछ भगवा आतंकवादियों ने मजहबी कमेंट किया, ज़दोकोप करने की कोशिश कर रहे थे। यह खबर मिलते ही क़ारी ज़ाकिर हुसैन ने फौरी तौर पर आला अफसरान से राब्ता कर सूरत हाल से आगाह किया और एक वक्त हाफिज मोहम्मद इकराम, मुफ्ती मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद मुजम्मिल साहब, कारी मोहम्मद सादिक वगैरह के हमरा थाना रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर पहुंचकर उन्होंने वहां पर इन भगवा आतंकवादियों की गिरफ्तारी की मांग की। एक्चुअल में ट्रेनों में भी अब हमारे मुसलमान नौजवान या मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले महफूज नहीं है। एक तरफ तो हुकूमत के नुमाइंदे यानी पुलिस वाले भी परेशान करते हैं और दूसरी तरफ भगवा आतंकवादी भी परेशान करते हैं।
रियासत महाराष्ट्र के मुंबई की बड़ी खबर आ रही है और महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी मुकर्रर कर दी गई है। रश्मि शुक्ला ने अपने 1988 के बैचमेट रजनीश सेठ से चार्ज संभाली, जो इतवार को रिटायर हुए और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन गए। जी हां, महाराष्ट्र हुकूमत ने जुमेरात को 1988 बैच की इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया। अक्टूबर में किए गए एक ऐलान के मुताबिक उसने अपने बैचमेट रजनीश सेठ से बागडोर संभाली, जो इतवार को रिटायर हुए और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी के चेयरमैन के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। खैर, रश्मि शुक्ला जी को महाराष्ट्र की डीजीपी मुकर्रर किए जाने पर हम उन्हें वायरल न्यूज लाइव की जानिब से मुबारकबादी पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी निगरानी में और उनकी जिम्मेदारी में महाराष्ट्र का कारोबार बेहतर रहेगा। आइए आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, राम भक्तों और अन्य भक्तों मुबारक हो, अब्बा हुजूर तुम्हारे डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करने को तैयार नहीं है और तुमको लगा दिया है राम मंदिर के भव्य ओपनिंग में तुम खुश हो रहे हो और तुम्हारी मारी जा रही है। खाम तेल की कीमत में अदम इस्तेकाम का दावा किया गया। बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की कयास आराइयां की जा रही थी, लेकिन मोदी हुकूमत जो सिर्फ लूटमार करने के लिए आई है, उन्होंने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने से इनकार कर दिया।